بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ معیشت بحال، برآمدات میں اضافہ اور معاشی اشاریے مثبت۔ حکومت کمزور طبقے کی فلاح کے لیے کوشاں، احساس پروگرام، صحت انصاف کارڈ، پناہگاہیں، فلاحی ریاست کی جانب اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم کی کامیاب حکمت عملی نے قوم کو کورونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بچایا، وزیر مواصلات مراد سے۔ عوام نے اپوزیشن بیانیہ مسترد کر دیا، پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں میں موروثی سیاست پروان چڑھ رہی ہے۔ نواز شریف دور میں رائے بند کی سیکیورٹی کے لیے 2700 اہلکار تعینات کیے گئے۔ آصف زرداری نے عوام کے ٹیکس کے 316 کروڑ روپے کیمپ آفس کے نام پر اڑائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ملک میں کہیں بھی کوئی کیمپ آفس نہیں، وزیر مواصلات مراد سے۔ امن دشمنوں کی وحشیانہ کارروائی، مچ کول فیلڈ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 11 کان جاں بحق، متعدد زخمی۔ بیشتر کی حالت تشویشناک، سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں آپریشن جاری۔ بلوچستان میں کانکنوں کا قتل، دہشت گردی کا ایک اور غیر انسانی اور بزدلانہ فعل۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کی شدید مذمت۔ حکومت مقتولین کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی، مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ شاہی خاندان نے لاہور کو بنانے سنوارنے کے نام پر جنوبی پنجاب کے عوام کے فنڈز پر ڈاکہ ڈالا۔ جنوبی پنجاب کے عوام تعلیم، صحت اور روشنی کو ترستے رہے، جبکہ ان کے سارے وسائل لاہور پر خرچ کر دیے گئے۔ آج یکساں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، حکومت عوام سے اپنا وعدہ نبھا رہی ہے، وزیر اطلاعات سینیٹر شریف اقبال۔ بھارت پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے 750 ویب سائٹس کے ذریعے ہرزہ زرائی کر رہا ہے۔ ای یو ڈس انفو لیب کے انکشافات سے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ ملک میں کورونا سے مزید 53 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 10,311 ہو گئی۔ 2,272 نئے کیسز رپورٹ، ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,663 ہو گئی۔ مثبت کیسز کی شرح 5.12%۔ حریت قیادت کی جالے مقابلے میں 3 بے گناہ نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت، کشمیری عوام کی نسل کشی کی طرف ایک قدم قرار۔ جعلی مقابلے میں شہید ہونے والے نوجوان کے والد مشتاق احمد کا اپنے بیٹے کی میت حوالے کرنے کا مطالبہ۔ بھارت میں کسانوں کی تحریک 39ویں روز بھی جاری۔ کسان قیادت کا 6 جنوری کو کنڈلی، مانسر اور پرول ہائی وے پر ٹریکٹر ریلی نکالنے کا اعلان۔ انگریز راج کے بعد بھارت پہلی بار بدترین تباہی کا شکار ہوا، کانگریس رہنما راہل گاندھی۔ افغان سرزمین پر بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب، بھارتیوں کے ہاتھوں افغان بچوں سے زیادتی اور ویڈیوز بنانے کا ایک اور دلخراش واقعہ منظر عام پر۔ کابل میں کمسن بچی سے زیادتی کیس میں بھارتی گروہ ملوث ہے، افغان پولیس۔ بھارت میں اقلیتوں، کشمیریوں اور کسانوں کے بعد غیر ملکی خواتین بھی غیر محفوظ۔ امریکی خاتون کو 2013 میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کرپٹ ججز نے ملزم کو ضمانت دے دی۔ امریکی خاتون کی دہائی، خاتون نے کانسلٹ کے باہر ویڈیو بنا کر بھارت کا گھناؤنا چہرہ دنیا کو دکھایا۔ دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 8 کروڑ 52 لاکھ سے تجاوز کر گئی، 18,47,500 سے زائد ہلاکتیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 2 کروڑ 31,07,000، امریکہ میں 3,59,700، بھارت میں 1.5 لاکھ کے قریب افراد جان کی بازی ہار چکے۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ اگلے 2 روز میں اسلام آباد، کشمیر، ہزارہ ڈویژن میں مزید بارش کی پیشگوئی، وادی نیلم، مری اور گلیات میں برف باری کا امکان۔ کرائسٹ چرچ میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کا پہلا دن، پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 297 رنز بنا کر آؤٹ، اظہر علی کے 93، محمد رضوان کے 51 اور فہیم اشرف کے 48 رنز۔ نیوزی لینڈ کے کائل جیمیسن کی 5 وکٹیں۔ سیریز پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست۔ کراچی میں قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل کا تیسرا دن، خیبر پختونخوا کے 300 رنز کے جواب میں سینٹرل پنجاب نے 257 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی۔ دوسری اننگز میں خیبر پختونخوا کے 5 وکٹوں پر 243 رنز، میچ میں 286 رنز کی بڑھتی حاصل کر لی۔ قائد اعظم ٹرافی ای ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست۔
ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ رہیے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئرز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری. پاکستان کی اکانومی کی ایک بڑی پرابلم جو گزشتہ 30 سے 40 سال سے آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت اگر تو 100 روپے کلیکٹ کرتی ہے عوام سے جو کہ ٹیکس ریونیو میں کلیکٹ کرتی ہے تو اس میں سے 55 روپے تو صرف آپ دے دیتے ہیں جو پچھلا ادھار کو سروس کرنا ہے یا پچھلے ادھار کا پورشن واپس کرنا ہے. تو ڈیٹ سروسنگ کے اندر آپ 100 روپے میں سے 55 روپے تقریباً واپس کر دیتے ہیں ایکسٹرنل اپنے کریڈیٹرز کو. تو جب کریڈیٹرز کو آپ 55 روپے دے دیتے ہیں تو باقی آپ کے پاس بچتے ہی 45 روپے ہیں کہ آپ لوکل گورنمنٹ میں ایکسپینڈ کریں، لوکل ایکسپینڈیچر پہ ایکسپینڈ کریں اور اپنے ترقیاتی کاموں پہ ایکسپینڈ کریں. اس میں دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ اپنا انفراسٹرکچر انڈسٹری کا کس طرح بڑھایا جائے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو کس طرح آگے بڑھایا جائے. تو پرابلم اصل میں آ رہی ہے آپ کے ٹاپ لائن سے کہ آپ کا جو ریونیو ہے ایف بی آر کا اس کا ایک بڑا پورشن چلا گیا ہے آپ کے ڈیٹ سروسنگ میں. دوسرا اہم سوال کہ کیا ایف بی آر میں جو ریفارمز آئی ہیں اس سے ڈیٹ کلیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو ٹیکس حکومت جمع کر رہی ہے اس میں کیا بیش بہا اضافہ دیکھا گیا ہے 2 سے 3 سالوں میں. دیٹس اگین $1 billion کوشچن دیٹ ویل بی آسکنگ ٹو آور گیسٹ. ابھی ریسنٹ جو نمبرز آئے ہیں، جو 6 ماہ کے نمبرز آئے ہیں، 2204 ارب روپے ہم نے کلیکٹ کیے فرسٹ ہاف میں FY21 کے، جو کہ شارٹ فال بتا رہے ہیں کہ 6 ارب کا شارٹ فال ابھی آیا ہے. لیکن کلوز ٹو 99% آپ اپنا ٹارگیٹ میٹ کر گئے ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کی اکانومی ابھی گریجولی ریکور کی ہے کرونا کے بعد اور ابھی بھی بہت ساری اسٹرکچرل ریفارمز مارکیٹ میں آ رہی ہیں. اور بزنس مین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگین جو دسمبر کے نمبرز آئے ہیں 508 ارب روپے جو آپ نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے وہ بھی زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں جو کہ 469 بلین روپیز تھا. تو ایئر آن ایئر بیسس پہ بھی دسمبر میں بہتر نمبر آئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجول ٹیکس کلیکشن کی ایبلٹی بڑھ رہی ہے. کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اور مزید کرنی ہے کہ تاکہ یہ مراحت کو اضافہ کیا جائے، ٹیکس کلیکشن کا نظام بہتر کیا جائے. 2.3 ملین لوگ اب زیادہ رجسٹر ہوئے ہیں. دسمبر کا جو ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ٹیکس فائلرز ہیں وہ 2.3 ملین پیپل ہیں جو کہ 2.17 ملین تھے اسی وقت پچھلے سال میں. تو گریجولی نمبر آف پیپل ہو آر فائلنگ فار ٹیکس وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہ بہت چھوٹا نمبر ہے. تو ان تمام تر ایشوز پہ بات کرنے کے لیے انڈسٹری کے کیا ٹیکس کلیکشن کے ایشوز ہیں اور دوسرے مسائل کیا ہیں، آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں. میں اپنے رائٹ سے تعارف کرنا چاہوں گا. زبیر طفیل صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا سر. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایوب مہر صاحب، اکانومسٹ ہیں، بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، خاص طور پہ میکرو اکنامک ایکسپرٹیز کافی ہے ان کی. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم الزمان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے کاٹھی کے، ہمارے ساتھ پروگرام میں اکثر نظر بھی آتے ہیں، دوسرے شوز میں کافی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. دین آن دی فورتھ سائڈ ہمارے پاس شیخ حبیب صاحب ہیں جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. آپ سے خاص طور پر ڈسکس کریں گے کہ عوامی مسائل جو کہ SMEs ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں ٹیکسیشن کے بارے میں. کچھ کی اسٹیٹس دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم ایک آپ کو جائزہ لے کے بتا سکیں کہ کیا امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو اکانومی میں خاص طور پہ ریونیوز اور ٹیکس کلیکشن کو اگر دیکھا جائے تو پچھلے 5 سے 6 سالوں میں ریونیوز آپ کے گرو ہی نہیں ہو پائے. آپ اسٹیگننٹ لائن دیکھ رہے ہیں ریونیوز کی اور ایکسپینڈیچر گریجولی گرو ہوئے اور جو پچھلے 2 سال میں ایکسپینڈیچر کافی گرو کر گئے جس سے ایک ڈیفیسٹ کا گیپ بڑھ گیا. اینڈ دین یو ہیو ٹو اگین گو ٹو IMF پروگرام اینڈ وہاں سے آپ نے فائنینسنگ لے کے اپنا ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کی کوشش کی. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو ریونیوز ہیں دے ور ناٹ ایبل ٹو پک اپ، نمبر آف ٹیکس پیئرز نہیں انکریز ہو پائے تھے، یہ ایک بڑا ایشو تھا. کوانٹم نہیں ہو رہا تھا، ٹیکس کی چوری کا ایک بڑا مسئلہ تھا، ڈاکیومنٹیشن واز اندر ایشو، اسمگلنگ بھی اس کا باعث بنا. تو یہ اس چارٹ کی صورت میں آپ کو اکانومی کی پکچر نظر آ گئی. اگر ہم مزید آگے چلیں
इसमें पब्लिक डेट के ऊपर इंडिकेटर्स को जायजा लें तो अगेन पब्लिक डेट के इंडिकेटर्स काफी सिवियर पोजीशन आपके सामने पेश कर रहे हैं कि 62.5% आपका रेवेन्यू टू ओवरऑल आपका जो डेट सर्विसिंग है वो रेवेन्यू का आपके 62.5% रहा 2019 में, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। अगर आप 62.5% या 50% अपने रेवेन्यू का उधार देने में लगा देंगे तो आपके लिए काफी मुश्किलात वैसे ही पैदा होना शुरू हुई। अगर हम एक और तीसरी स्लाइड देखें कि आपकी जो डेट प्रोफाइल है और अच्छी सर्विसिंग है वो भी काफी मुतासर कुन नहीं रही है, अगरचे आपने रिफॉर्म्स कर ली हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एफबीआर की रिफॉर्म जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब चार्ज संभाला तो एफबीआर के अंदर की रिफॉर्म्स लेकर आए, डॉक्यूमेंटेशन की, और उससे ये चीज पुश करने की कोशिश की कि आप अपने आप को डॉक्यूमेंटेशन में लाएं, अपना टैक्स फिलहाल कम कर दीजिए, आपको स्लैब वाइज अमरात दी जाती हैं, लेकिन कम से कम आप अपने गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स हैं उनमें इजाफे का बाइस बनिए। तो नंबर वन क्वेश्चन जुबैर तुफैल साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल जो नंबर्स आए फर्स्ट हाफ के, हाउ डू यू फील कि वी क्लोज टू मीटिंग द टारगेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि टारगेट तो ऑलमोस्ट मीट हो गया है, डिस्पाइट के इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस भी थे, मुश्किलात भी थी, लेकिन इकोनॉमी के बाद सेक्टर ऐसे भी थे जो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, उसकी वजह से ये टारगेट जो मीट हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ऑटो इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इसकी वजह से आपके ओवरऑल टारगेट्स मीट हुए। बाद सेक्टर ऐसे हैं जो वीक रहे और उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी एफबीआर ने इस 6 मंथ्स में जो है वो टारगेट ऑलमोस्ट मीट कर लिए। और लेकिन जो आपने कहा कि 2.3 मिलियन लोगों ने रिटर्न दाखिल की, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि तकरीबन 8 लाख लोगों ने रिटर्न में ये लिखा है कि उनकी आमदनी 4 लाख रुपए से कम है, उन्होंने 100 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। तो एक्चुअली जो टैक्स पेयर हैं वो आपके 15 लाख लोगों से भी कम है। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि 22 करोड़ लोगों के अंदर 15 लाख लोग जो टैक्स दे रहे हैं, और अगर आप इस 15 लाख को भी फर्दर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो 10,000 रुपए तक का टैक्स दे रही है सालाना, और रियल टैक्स पेयर जो है वो चंद कंपनीज है या इंडस्ट्रीज है। टू बी प्रिसाइज 43.5 बिलियन के रिटर्न्स फाइल हुए हैं वर्सेस 28 बिलियन, तो उसमें 55% का इजाफा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर इस रिटर्न को देखें ओवरऑल जीडीपी के मुकाबले में, जीडीपी भी अनडॉक्यूमेंटेड बहुत सारी है, अगर जो डॉक्यूमेंटेड है उसका भी ये बहुत ही मीगर एक परसेंटेज आ रहा है। अभी एफबीआर को ना बहुत काम करना है। एफबीआर का काम ये है कि नए टैक्स पेयर्स को तलाश करे, प्लस जो अंडर डिक्लेयर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 8 लाख लोग जो हैं इनको जरा फर्दर स्क्रूटनाइज करें और देखें कि उनकी आमदनी क्या है, किस तरह से है। बहुत बड़ा अभी भी एक सेगमेंट है जो टैक्स नेट में नहीं है। आप देखें कि ऑटोमोबाइल की जो सेल्स हैं वो पहले से बहुत बढ़ गई हैं। दूसरी बात, ऑटोमोबाइल की सारी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 3 से 6 महीने की एडवांस सोल्ड है। उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास पैसे, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को तो किसी की पैसे की जरूरत ही नहीं है। उनके पास जिन्होंने कारें बुक कराई हैं उनके पास पैसा है, वही वर्किंग कैपिटल है, उनका सारी चीजें हैं। और दूसरा देखिए, जब 30 लाख की गाड़ी थी तो इतनी तेजी से नहीं बिकती थी, जब आज एक सेगमेंट है जो 40 लाख के राउंड में है कि अराउंड 38 to 42 लाख रुपीस, वो गाड़ी भी बिक रही है, लेकिन उससे ज्यादा वो बिक रही हैं जो 5 मिलियन से ज्यादा हैं। तो लोगों के पास पैसा है। ऑटोस पे भी आता हूँ, आपने बिल्कुल राइट पॉइंट आइडेंटिफाई किया। मैं एक टैक्स पे आपको कमेंट देना चाहूंगा मेरे साहब, व्हाट इज योर टेक? जहां तक आपने टारगेट की बात की है ना, टारगेट्स को पहले डिफाइन करना होगा, कौन से वाले टारगेट। जो हमने बजट में टारगेट्स रखे थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए, वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए, वो अचीव हो गए हैं। मसला ये है कि जब गवर्नमेंट आई थी, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में जो 10 नुकाती एक प्रोग्राम था, इकोनॉमी का एजेंडा दिया था, उस 10 नुकाती में 7 इकोनॉमी से रिलेटेड थे, और उसमें टैक्स से रिलेटेड दूसरे नंबर पे जो पॉइंट था टैक्स रिलेटेड था कि टैक्स की जो कलेक्शन 4 ट्रिलियन रुपीस के करीब है पाकिस्तान में उस वक्त ही 2 साल पहले, उसको 1 ट्रिलियन पे ले जाएंगे। तो जीडीपी से इसका रेशो मेंटेन हो जाना था। 8 ट्रिलियन अभी बहुत दूर है। इस साल भी हमने जो टारगेट रखा है ना, नहीं 2020-21 का जो टारगेट रखा है वो 5 ट्रिलियन के करीब रखा है हमने, 20% ग्रोथ उसमें दी है, तो वो अचीव हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो उसका एक मैं समझता हूँ एडवर्स भी उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो ये कि हमारा जो सिस्टम है, दुनिया में चंद एक कंट्रीज हैं जहां ऐसा होता है कि मोस्टली जो 70% हमारा टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें जीएसटी मेन है। अच्छा, ये टैक्सेस जो है ये बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी है
کہ یہ کوئی مہذب ٹیکس نہیں سمجھا جاتا، یہ ریگریسو ٹیکس ہے، انفلیشنری ہے، چیزوں کی پرائزز میں شامل ہو جاتا ہے اور اس سے پھر کلیکشن بڑھتی ہے. اب آپ دیکھیں، اب اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو میچ کرنا چاہیں نا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کا نیگیٹو میں رہا، وٹ ایور سو ریزن، اس کو چھوڑے، نیگیٹو تو رہا نا، ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی. اگر ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہو تو پارٹیکولرلی ان ڈائریکٹ ٹیکسز کی وہ شو کر رہی ہے انفلیشن بڑھتا ہے نا، پرائز بڑھتی ہے چیزوں کی. جب پرائز بڑھتی ہے تو جی ایس ٹی آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا کیونکہ وہ تو اس کی ویلیو پہ لگ رہا ہے. اب اگر جی ڈی پی کی گروتھ نہیں ہو رہی لیکن پرائزز بڑھ رہی ہیں اور ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے، الٹیمیٹلی کیا چیز ہٹ ہو رہی ہے؟ کوئی چیز تو ہٹ ہو رہی ہوگی نا. کنزمپشن کے خرچے بڑھ رہے ہیں، سیونگ کم ہو رہی ہے. آنے والے دور میں پھر وہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ کو ٹھیک ہے. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا سلیم صاحب. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ فرسٹ کہ ٹارگیٹس کے اوپر کہ کہاں انڈسٹری جتنی گروتھ انڈسٹری میں آئی ہے ہم قریب اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کر رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ کوئکلی پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. جی دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ ٹارگیٹس کو ہم نے تقریباً میٹ کیا. ہمارے جو بجٹ کے ٹارگیٹ تھے اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس آیا، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں جو انڈسٹری کو جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو آلریڈی رجسٹرڈ انڈسٹریز ہیں، جو آلریڈی ٹیکس پیئنگ انڈسٹریز ہیں، ہمارا پریشر، ہمارا جو پورا فوکس ہوتا ہے وہ انہیں کے اوپر ہوتا ہے کہ انہیں سے کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر لیا جائے. جبکہ ہمارا ایک اسٹینس ہمیشہ سے یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائیے. وہ لوگ جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے، بہت سارا ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہمارے ٹریڈرز ہیں، اور جو لوگ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے ان کو آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں، کیونکہ سب لوگ کریں گے کنٹریبیوٹ تو اس کے بعد تبھی ملک کا ایک نظام چل سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ایک بہت لمیٹڈ نمبر آف ٹیکس پیئرز ہو. بات ہو رہی ہے 15 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں، اگر آپ کے پاس 22 کروڑ آبادی کے ملک کے اندر، تو دیٹ از لائک نتھنگ، وہ نیگلیجیبل ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کبھی بھی اپنے ٹارگیٹس پورے نہیں کر سکتے، یا جو آپ کے ایکچوئل ٹارگیٹس ہیں جو ہونے چاہیے وہ آپ اس کو میٹ نہیں کر سکتے. ہم نے تو ابھی بجٹ کے ٹارگیٹ تقریباً پورے کیے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا ڈیفیسٹ آیا ہے. اب بجٹ کے ٹارگیٹ میں اگر تھوڑا سا بھی ڈیفیسٹ آیا ہے تو میں تو اس میں کہوں گا کہ پہلے ہمیں اپنے بجٹ کو پھر فوری طور پہ ریوائز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے جو بجٹ کے ہمارے ٹارگیٹس تھے اگر اس میں ذرا سا بھی ڈفرینس ہے تو اس کی بیسس پہ ہماری ایک ایک چیز پلان ہوئی بھی ہوتی ہے، ہمارے آگے کے تمام پروجیکٹس پلان ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس کو آپ ریوائز نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی جا کے آپ کے پروجیکٹس وہ ہولڈ پہ آ جائیں گے. تو ریویژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی، ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہی تو آئی جائیں گے. IMF کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آئی ہے، لیکن وہ جو ریویژن چاہ رہے ہیں وہ ریویژن مور ٹیکسز کی طرف جا رہے ہیں، ایکسپینڈیچر کٹ پہ نہیں آ رہے ہیں. جی، وہ ٹیکسز بڑھانے پہ آ رہے ہیں ریویژن میں. ہاں، لیکن اگر آپ کے وہ ریونیوز تھوڑا سا بھی، میں شیخ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا، بیکاز یہ تو انہوں نے تو آپ کے اوپر بتا دیا سیدھا کہ ہم تو انڈسٹریلسٹ ہیں، ہم رجسٹرڈ ہیں، انکم اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں، SCP میں جا کے دیکھ لیں. لیکن جو چھوٹے تاجران ہیں وہ ہمیشہ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم نئی ٹیکس دیں گے کیونکہ ہمیں یہ سہولیات نہیں ملتی، یا پھر اس کو آسان نہیں بنایا جاتا. آپ نے کیا آبزرو کیا ہے پچھلے ایک سال میں؟ کیا چیزیں آسان ہوئی ہیں؟ نئے ٹیکس پیئر رجسٹرڈ ہوئے ہیں؟ پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان کی بات کون کروں گا کہ بالکل ہی اپنی جگہ صحیح فرما رہے ہیں. اور موجودہ جو دور میں، جو پچھلے دور میں اگر ہم جاتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کی جو شٹر پاور جو تھا ٹریڈ، اسے نظر انداز کیا جاتا تھا کسی بھی قسم کے معاملات. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا. مدثر، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال سے پرائم منسٹر آف پاکستان جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں بھی سرائی جا رہی ہے. پلس اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے تاجروں کو اپنا فاؤنڈیشن کرے، اور ہماری خواہش ہے اور ہم ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. مرکزی تنظیم تاجرات پلیٹ فارم کے سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ چاروں صوبوں کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ کو آپ آن کریں، چھوٹے تاجروں کو جو ہے نا آپ انہیں مہارت دیں. جس طرح بھی دیکھیں آپ نے انڈسٹریز میں گروتھ کی ہے، آپ دیکھ لیں گے ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں آپ، ماشاء اللہ بہت زبردست کام کیا پریس آف پاکستان نے کہ اس کی گروتھ بڑھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح تمام شعبوں میں جو بھی چیزیں کی تو چھوٹے شٹر پاور کی بھی طرف جو ہے نا مثال کے طور پہ دیکھیں تو جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ٹیکسز ملے، ہم باہر پچھلے 3 ماہ پہلے بھی ہماری وزیر خزانہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، حفیظ شیخ صاحب سے. ہم نے ان کو کچھ تجاویز دی. ہم نے کہا کہ چھوٹا تاجر آپ کے ساتھ کھڑا شانہ بچانا، ہم ڈور ٹو ڈور آپ کو ہمیں آدمی بندے تھے، ہم ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ کریں گے اور آپ کو ٹیکس دن لا کے تمام جو چھوٹا تاجر ہے ہمارا ٹیکس نیٹ میں آئے گا. لیکن ان کو کچھ مجبوریز ہیں. وہ مجبوری یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم آتی ہے تو اسے حکومت جو ہے سالو نہیں کرتی. تو میں آپ کے طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ چھوٹے تاجروں کو بھی ایسی پالیسی دیں، ایسی مہارت دیں تاکہ جو مثلا ٹیکسٹائل میں آپ نے دیا ہے، چھوٹے انڈسٹریز میں آپ نے گروتھ دی ہے، تو بزنس کمیونٹی بھی چھوٹے تاجروں کو بھی کھڑا کریں. گزشتہ 6 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پوزیشن آپ کے سامنے ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے کورونا کی صورتحال میں ابھی تک ریٹرن نہیں فائل کر سکے. ایک مسئلہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک پرابلم یہ آ رہا ہے، یہ جو نمبر ہے 2.3 ملین لوگوں کا جس میں انہوں نے کہا کہ اچھے خاصے نے تو کچھ ٹیکس دیا ہی نہیں ہے. جی ایسا ہی. اگر یہاں ادھر اسٹوڈیو سے 15 کلومیٹر ریڈیس میں گھما لیں، ایک پورا ایک سرکل لے لیتے ہیں 15 کلومیٹر میں، اس سے ٹرپل تو ٹیکس پیئر آپ کو مل جائیں گے جو کہ ٹیکس نیٹ پہ آ سکتے ہیں، جس میں چھوٹے تاجر بہت ہوں گے. تو ایکچولی
हैबिट ही नहीं है कि हम टैक्स फाइल करें, तो उनको टैक्स फाइल की हैबिट किस तरह दिलाई जाए? बिकॉज दिस इज अगेन अगर 50,000 की लिमिट लगाई थी। मैं ये जरूर कहूंगा कि FBR जो है ना, वो जो मकसद है, जो सिस्टम पे बैठे हुए जो लोग थे ना पिछले दौर के अंदर, वो नहीं चाहते थे कि लोग जो है FBR के अंदर मकसद के टैक्स में रिमूव, वो कहते सिर्फ हमारी पॉकेटों में डाल दिया। लेकिन अब ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा हो गया काफी जी। अब मैं समझता हूँ कि अब मकसद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो पॉलिसी इस वक्त मौजूद है, मुझे उम्मीद है अल्लाह की तरफ से कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और छोटे से छोटा ताजिर जो है ना, मैं समझता हूँ कि टैक्स नेट में आना चाहता है। और अभी भी आप देखिए कि कोरोना की वजह से जो है टैक्स कुछ लोग रह गए। अभी भी मकसद है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग रह गए उन्हें टाइम शेड्यूल दिया जाए, ताकि छोटा ताजिर जो रह गया या इंडस्ट्रीज रह गए वो अपने आप को ग्रोथ में डाल सके। कोरोना की वजह से बहुत से लोगों ने जो है अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। ठीक है, जुबैर साहब आपका टेक लेना चाहूंगा। ये बड़ा एक इशू होता है कि कोई ना कोई इशू रह जाता है एंड अगले साल फिर बैठेंगे और नंबर नहीं बढ़ पाता। व्हाट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम? बिकॉज छोटे ताजिरों का क्या इतना प्रॉब्लम है कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं बढ़ रही कम अज कम सिस्टम के अंदर? देखें, ये 2-3 साल से एक्सरसाइज हो रही है और मैं FBR में इस चीज का हिस्सा रहा हूँ। जी। लेकिन जो छोटे ताजिर है वो उनके बहुत सारे खदशात हैं। वो कहते हैं जी कि जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, फिर उसके बाद ये माजी में जाते हैं कि ये कहाँ से बनाया, ये कहाँ से लाया, ये कैसा हुआ। तो इनको एक दफा कोई ऐसी छूट देनी होगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को छूट दी है ना, इनको छोटे ताजिरों को भी कोई ऐसी छूट दी जाए कि भाई आप अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर करो और उस पर नॉमिनल सा टैक्स लगाए, बिल्कुल नॉमिनल। ये एमनेस्टी अभी दी नहीं गई थी, पार्टिसिपेट कर सकते थे ना? एमनेस्टी देखिए जो दी गई है अभी तो खैर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इससे पहले भी, तो उस वक्त भी जो है छोटे ताजिरों ने उससे फायदा पूरी तरह नहीं उठाया, कुछ ने उठाया लेकिन अक्सरियत ने नहीं उठाया। तो इसमें मैं समझता हूं कि FBR को चाहिए कि बजट से पहले इन्हें एक मौका और दें कि भाई आप रिटर्न्स दाखिल करें और आपसे माजी का नहीं पूछा जाएगा, आगे का जो है टैक्स आप दें। उसमें उनके लिए कोई ऐसा टर्नओवर टैक्स लगा दिया जाए और उसका रेट कम होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये रेट ज्यादा रेट होने से भी भागते हैं, कहते हैं कि ठीक है इस पे नेट से गायब रहो तो ज्यादा अच्छा। देखिए मसला ये है, इसमें वही मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा। इनके इंतखाबी मशहूर में इस गवर्नमेंट की, इससे पहले वाली गवर्नमेंट के भी था कि हम इंडायरेक्ट टैक्स से डायरेक्ट पे शिफ्ट करेंगे। ये इनके लिए बड़ी सहूलत है, इंडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देते हैं तो डायरेक्ट की तरफ, फाइलिंग की तरफ ये गवर्नमेंट भी नहीं जाती, लोग भी नहीं जाते, गवर्नमेंट भी नहीं जाती। हम एक तरफ ये बात करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन लोएस्ट कंट्रीज में है जहां लोएस्ट टैक्स टू GDP रेशियो है, लेकिन एक और भी फैक्ट है कि पाकिस्तान दुनिया की उन 5 कंट्रीज में है जहां टैक्स रेट हाईएस्ट है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाईएस्ट टैक्स रेट है। इनकम टैक्स 5 इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है 5 कंट्रीज में शामिल है जो हाईएस्ट टैक्स पे कर रही हैं। मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हम फाइलिंग, अब जो फाइलिंग बढ़ रही है ना, फाइलिंग लोग फाइल तो कर रहे हैं, लेकिन जुबैर साहब ने भी इंडिकेट किया है उनके साथ टैक्स थोड़ी आ रहा है उन फाइलिंग से, नोटिस ना आए इसलिए वो सिस्टम एग्जैक्टली सिस्टम में वो फाइलर बन जाते हैं लेकिन टैक्स नहीं पे कर रहे। टैक्स पे करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये टैक्स रेट को इनको बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना होगा। एक्सपीरियंस है ना, कारपोरेट टैक्स में था, कारपोरेट टैक्स ग्रेजुअली आपने रिड्यूस किए, कारपोरेट सेक्टर से अब ज्यादा टैक्स आ रहा है। वेल्थ टैक्स की वजह से लोग फाइल नहीं करते थे, आपने खत्म किया, बहुत फर्क पड़ा है उसकी वजह से। डायरेक्ट टैक्सेस का रेट कम करें और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। इकोनॉमी में बहुत अहम वो शोबे हैं जो GDP में तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबको पता है, सही है, लेकिन टैक्स में उनका कंट्रीब्यूशन सही है। ये एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा एक इम्पोर्टेंट सलीम साहब एक इशू ये है कि टैक्स कलेक्शन जब करने जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछते हैं कि आप अपना टैक्स दें, तो वो 10 इशूज बताते हैं गवर्नमेंट को कि पहली बात तो ये आप इलीगल ट्रेड को रोकिए, आप हमें बिजनेस को मरा दीजिए, गैस दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। एक तो ये पूरा एक आर्गुमेंट बिल्ड होता है, बिकॉज वो फिर एसोसिएशन के थ्रू हम पुश करते हैं गवर्नमेंट को जाके कि आप पहले ये दीजिए। तो इट्स लाइक चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि पहले आप ये दीजिए तो हम आपको टैक्स देंगे, अदरवाइज हम टैक्स नहीं देंगे अगर आप ये नहीं देंगे। तो हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू एक्चुअली, बिकॉज ये एक बड़ा इशू रहा है कि जब भी मैसिव कलेक्शन ऑफ टैक्स की बात होती है, फिर वो एक होता है कि नोटिस आ गए और एक वो एक नई डिबेट में निकल जाते हैं। सर योर टेक। जी देखिए, इसमें आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें बात यह है कि ये इंडस्ट्री की हमेशा से एक डिमांड जरूर रही है, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से कभी भी इस बेसिस पे टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस रुका तो नहीं है। टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस तो हमेशा से चलता रहा है और टैक्स इसके बावजूद भी देती रही है। तो मैं आज भी आपसे गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ आपके तवज्जुह से कि जो गैस है, यूटिलिटीज हैं, इनकी फराहमी तो इंडस्ट्री का एक बेसिक राइट है। अगर आज अभी रिसेंटली गैस के प्राइसेस दोबारा बढ़ गए हैं, दोबारा सिवियर हो गए, अगर गैस नहीं होगी, इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं कर पाएगी, अपने ऑर्डर्स को मीट
मीट नहीं कर पाएगी, उसकी रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, तो वो टैक्स कहाँ से देगी? लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स दिया और जितनी ज़ाहिर का सेल हुई उसके हिसाब से टैक्स दिया। अगर आप ये यूटिलिटीज नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू गिरेगा और उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो कि आता है हमेशा यूटिलिटीज की कमी की वजह से। लेकिन जितनी सेल होती है उसके हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो प्रॉपर पूरे टैक्सेस दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये एक और भी इशू होता है अंडर इनवॉइसिंग का, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये भी काफी पिछले 1.5-2 साल में रिफॉर्म जब एफबीआर ने अपना सिस्टम ऑटोमेट किया है तो इन तमाम तरह चीजों को पकड़ा है। रिटेल सेक्टर्स के अंदर खासतौर पे ये बहुत होता था कि आप अंडर इनवॉइस करते थे और डॉक्यूमेंटेड सेल और एक्चुअल टैक्सेबल सेल में जमीन आसमान का फर्क होता था। तो ये भी एक बड़ा इशू है। ये शेख साहब आप बताइए, क्योंकि आप रिटेल्स को काफी नुमाइंदगी करते हैं। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो मकसद है कि हमारे यहाँ जो गैर कानूनी रास्ते से जो माल आता है तो वो सबसे ज्यादा हमें नुकसान देता है। उसकी वजह है कि वो बॉर्डर से तमाम जगहों से जब निकल रहा होता है वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, वहाँ किस तरह निकल जाता है कुछ समझ नहीं आती। लेकिन जब वो मार्केटिंग में आ जाता है, हम छोटे ताजिरों के पास जब वो शॉपों में आ जाता है तो उसके बाद नार्कोटिक्स और वो दूसरे इदारे जो है उस पर रेड करते हैं और वो जो है ट्रक के ट्रक भर के और दुकानों को सील करके चले जाते हैं। तो मुझे अफसोस है, इस लीकेज को रोकना होगा। पिछले दौर में भी मकसद हमारी एफबीआर में जब इजलास हुआ उसके अंदर भी हमने यही कहा था कि भाई आप जो बॉर्डरों के ऊपर इस सिस्टम को बंद करें ताकि टैक्सेस देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक चीज हमें यही चीज टैक्स के मुताबिक मिल रही है 200 रुपए की, और वो जो चीज डायरेक्ट वहां से आ रही है अलग से एक्सटर्नल हो गए, वो चीज 160-150 रुपए की मिल रही है, 140 रुपए की मिल रही है, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो हर दुकानदार तो नहीं कर पाएगा ना, जिसकी जो मराठी में उसके मुताबिक रहता है। ठीक है, मुझे बताइए कि आपकी जो तंजीम है वो कितने ताजिरों की नुमाइंदगी करती है? कितने एक क्वांटम होगा, नंबर होगा आपके जहन में? कम से कम मेरे हिसाब से कम 45 लाख। 45 लाख 45 लाख ताजिरों की आप नुमाइंदगी? चारों सूबों में। चारों सूबों में, दैट्स अ बिग नंबर। एंड उसमें से कितने % लोग टैक्सेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं? देखिए, टैक्स में तो मैं ही समझता हूँ कि 20% भी नहीं है। उसकी वजह की पॉलिसी जो है ना, बल्कि माजी में जो रही है ना हमारे यहाँ, वो सिस्टम ऐसा रहा है कि एफबीआर खुद नहीं चाहता था, क्योंकि 20% से कम तो टोटल ओवरऑल भी कम है। बिल्कुल, मैं ऐसे यही कहना चाह रहा हूँ ना कि पिछले दौर के अंदर हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही कि एफबीआर चाहता ही नहीं था कि बस लोग टैक्स नेट में आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपसे सवाल पूछा जाए कि अब आपको टैक्स नेट में लाने की दरखास्त की गई है, गवर्नमेंट ने आपको पुश कर रही है और आपको सिस्टम बना के दे रही है, और मराठी एमनेस्टी भी जिस तरह मेरे साहब ने बताया की गई, तो ये 45 लाख जो ताजिर हैं, कम से कम आप इसमें से 5 लाख ताजिर तो ला सकते हैं इसमें? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर व्हाट इज स्टॉपिंग यू इस वक्त? अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर करना चाहे तो ये काम हो सकता है। क्या पॉलिसी है? मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम शराब पे आए, कम शराब पे आए, कम शराब रेट लोअर्स हो और हर आदमी टैक्स नेट में आ जाए। मैं चाहता हूँ छोटे से छोटा ताजिर जो है ना वो अपने नेट के अंदर आ जाए टैक्स में, ताकि वो फाइलर बन जाए। और फाइलर जब बनेगा तो वो ऑटोमेटिक आज अगर इस साल उसने अगर 10,000 रुपए दिए तो अगले साल 15,000 20,000 रुपए देने की ताकत। क्वेश्चन इज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी छोटी जो चीजें उसको एम्यूनिटी स्कीम में देके फिक्स टैक्स भी कर दें, ताकि वो ताजिर जो छोटा रेट पे आता है तो उसको फिक्स टैक्स की तरफ एकदम लगा ले जाया जाए, ताकि वो सब इकोनॉमी जो है। आपके सवाल पे मैं फिक्स कर दिया था। अगर आपको कहा है कि आप 45 लाख लोगों में से कुछ परसेंटेज को टैक्स नेट में लेकर आए, आपको पता है तो चीजें पिछले दौर के अंदर एफबीआर की जो टीमें निकलती थी ना, वो इसी दौर में किया है वो सर। आपने इस दौर के तो अभी हो रहा है, लेकिन अभी भी वो सिस्टम नहीं चल पा रहा। जुबैर साहब बैठे हुए मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि बहुत 70 साल का एक निजाम है, उसे सही करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को बहुत टाइम लगेगा। हम छोटा ताजिर आपके साथ खड़ा है, हम ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर इसकी तरफ वाकई अगर सीरियस हो जाते हैं और छोटे ताजिरों को अगर ये किसी किस्म की मराद दे दें। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 45 लाख ताजिर हैं और टैक्सेशन मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से आई हैव टू चेक विद द नंबर्स, 1 से 2% टैक्स में जो है ना, जो रिटेल से जो टैक्स कलेक्ट होता है वो बहुत कम है, नंबर ऑफ फाइलर्स के अलावा जो है ना, और बड़ी मात्रा। हालांकि इकोनॉमी ट्रेडिंग इकोनॉमी है हमारी, ट्रेडिंग इकोनॉमी है। यस, एग्जैक्टली, ट्रेडिंग इकोनॉमी में ज्यादा ट्रेडिंग से आना चाहिए। मैं ये यहाँ तो फौरन ठीक होगा या नहीं हो, जो कह रहे हैं कि कुछ टाइम लगेगा। टाइम तो 70 साल लग गए, 70 साल लग गए। अब जो है ना, इसमें सब लोगों को नेट के अंदर आना होगा। उसमें एफबीआर को चाहिए इनके लिए कोई एक दफा फिर से आसान रास्ता दें कि ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, छोटे ताजिर हैं, ये उसके अंदर आएँ, उसका रेट कम कर दें, कुछ भी करें, लेके एक दफा इनको नेट के अंदर आएँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इनको 5-10 साल के प्रोसेस में नहीं डाल सकते। ये तो है कि चंद महीनों के अंदर ही ये होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बात जो जिक्र हो रहा था स्मगलिंग का और अंडर इन्वॉइसिंग का, देखिए आपका जो रेवेन्यू कम आ रहा है ना, इसमें स्मगलिंग की बहुत बड़ी वजह है। आपके मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर स्मगलिंग होती है। मेरा
रफ आइडिया है कि 400 से 500 मिलियन रुपीस का जो रेवेन्यू है वो स्मगलिंग में गायब हो जाता है, खाया पिया जाता है। ये स्मगलिंग कहाँ से होती है? ये स्मगलिंग अफगानिस्तान और ईरान से होती है। अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, वो हुकूमत ने और फौज ने मिलकर ऑलमोस्ट अफगान बॉर्डर जो है वो उसको फेंस कर दिया है। उसमें अब स्मगलिंग की बहुत कम जगहें रह गई हैं। मेरे इल्म के मुताबिक 90-95% जो है फेंसिंग हो चुकी है। तो अब सिर्फ कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे अभी फेंसिंग नहीं हुई है, तो वहाँ से, लेकिन अगर वो पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ इतनी आसानी से बड़े पैमाने पे या बड़ी तादाद या क्वांटिटी में स्मगलिंग नहीं हो सकती, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाए। अब रह गया पाक ईरान बॉर्डर। इस वक्त पाक ईरान बॉर्डर में सबसे ज्यादा स्मगलिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन हुकूमत ने फौज के साथ मिलकर यहाँ भी फेंसिंग शुरू कर दी है। फेंसिंग जो है अभी इब्तदाई मरहलों में है। जो मुझे अंदाजा, जो इल्म हुआ है, वो 10 से 15% जो बॉर्डर का इलाका है वो फेंस हो गया, लेकिन कंटिन्यूस फेंसिंग चल रही है और इसमें तकरीबन 18 महीने या 2 साल लगेंगे। ऑफ कोर्स इसमें बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है और वो होगा। अब अगर हुकूमत को जब अपना रेवेन्यू चाहिए है और उसमें डिफेंस है, उसमें एजुकेशन है, सब चीजें, तो ये लीकेजेस बंद कर दें तो आपके पास रेवेन्यू भी आएगा। नहीं, स्मगलिंग नहीं होगी। और जब फेंस लगी होगी तो इतना आसान नहीं स्मगल करना, उसको वहां से वो रास्ता बंद किया जाए, रेवेन्यू बढ़ाया जाए। जहां जहां आपको पैसों की जरूरत है, डिफेंस में है, एजुकेशन में है, हेल्थ में है, तो वो सारी जगहें जो है यहीं से पूरी होंगी। और दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी में पोटेंशियल है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये मौजूदा साल और आने वाला साल जो है इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। हुकूमत जो है वो मराहत भी दे रही है इंडस्ट्रीज को, जैसे कि रेवेन्यू अपना ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही इकदाम उठाया कि उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, और जो परचेजर है उसके लिए सन 2023 तक की जो है उसको मराहत दी है कि आप 2023 तक जो है अपने 350 अरब बैंकों को कह दिया कि आप इनको फंडिंग करें, लिक्विडिटी। बैंकों ने पहली दफा, क्योंकि बैंक जो है, बैंक हाउस लोन देने से बहुत घबराते हैं। वो कहते हैं यार इसमें जो है फोर क्लोजर लॉज नहीं है, लेकिन वो लॉज भी अब आ गए, वो अब आ गए हैं। तो अच्छा, पहली दफा है कि बैंकों ने स्मॉल लोन्स देने शुरू किए हैं जो 50 लाख रुपए तक के बिल्डर्स के पीछे लगे हुए बैंक से। एक्चुअली ये प्रोग्राम में हम जिसका जिक्र कर रहे थे, चेयरमैन आबाद थे, तो बोलते कि अब बैंक हमारे पीछे हैं कि हमें ये लो, क्योंकि हमारा टारगेट है। हाँ बिल्कुल, हर बैंक ने, क्योंकि स्टेट बैंक ने ये भी कहा है कि जो ये टारगेट मीट नहीं करेगा उन पर पेनल्टी होगी। तो लिहाजा बैंक्स जो हैं इस वक्त छोटे जो कर्जे हैं हाउसिंग के, अप टू 5 मिलियन रुपीस पर अपार्टमेंट या हाउस जो भी है वो दे रहे हैं। तो उससे मैं समझता हूं कि इसमें इंडस्ट्री को और कंस्ट्रक्शन को और ज्यादा तेजी आएगी, और उसके साथ आम आदमी को भी जो है एक सहूलत से वो फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा, खासतौर पे इफ वी स्टिक टू द FBR टैक्स कलेक्शन टॉपिक। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक प्लेयर है इकोनॉमी के और आप एक प्लेयर है इकोनॉमी के। आप रिप्रेजेंट करते हैं एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज को जो कि रजिस्टर्ड है। ये रिप्रेजेंट करते हैं 45 लाख ताजरों को, जिसमें मोस्टली लेस देन 1% FBR के सिस्टम में रजिस्टर्ड है। तो ये आप देखें, रेंट सीकिंग बिहेवियर है। जी। एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के ऊपर रेंट सीक कर रहा है, और आप लोग ये एहतजाज कर रहे हैं कि हम पे टैक्सेस कम किए जाए, हम ऑलरेडी बहुत टैक्स दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम आएंगे ही उस वक्त कि जब हमें एमनेस्टी दी जाए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस तरीके से बैलेंस किया जाए इसको। व्हाट्स योर टेक? जी देखिए, इनकी बात मैं तो एग्री करूंगा कि इनको आना चाहिए और ये आने के लिए तैयार भी है। बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि इतनी बड़ी ताजिर तंजीम के रहनुमा की बात कर रहे हैं कि वो आने को तैयार है सिस्टम में। और मैं ये कहूंगा कि इनके लिए आसानी पैदा करें। सिस्टम सिंपल सी बात है कि हमारे लिए भी आसानी पैदा करें। हम तो ये वाली बात करते हैं कि जो हमारे जिस तरह का टैक्स का निजाम है कलेक्शन का, वो बंदा जो कि टैक्स नहीं पे कर रहा वो सबसे मजे में घूम रहा है, और जो बंदा टैक्स पे कर रहा है, जो इदारा टैक्स पे कर रहा है, वो टैक्स जमा कराते ही उसको कुछ दिनों के बाद नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, हियरिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, उसको ट्राइब्यूनल में लेके जाया जाता है। अगर उसका कोई जरा सी जानबूझ की डिस्क्रिपेंसी निकाली जाती है और उसके बाद उसको ट्राइब्यूनल में वहां तक लेके जाया जाता है, तो हम तो कहते हैं कि हमारे लिए जो टैक्स पेयर है जो कर रहा है ऑलरेडी, उसके लिए तो आप बिल्कुल इसको रिलैक्स कर दें, नोटिस का सिस्टम को अबॉलिश कर दें, जितना उसने डिक्लेयर कर दिया उसको कर दें। आप टैक्स की बेस बढ़ानी है, टैक्स का वॉल्यूम बढ़ाना है, उसके लिए आप छोटे ताजरों को इतने इजी उनके लिए रेट्स कर दें, इतना इजी उनको एमनेस्टी आप दे दें कि किसी तरीके से वो टैक्स नेट के अंदर सिस्टम में आ जाए। अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल। जो लास्ट एमनेस्टी निकाली गई थी उसमें अगर आपको कोई एप्लीकेशन रिसीव हुई, कंप्लेन अपने एसोसिएशन के ऑफिस में कि एक ताजिर ने अपना टैक्स फाइल किया, एमनेस्टी अवेल की, और फिर उसको FBR ने
दोबारा अप्रोच किया और सोर्सेज ऑफ इनकम? इज देयर एनी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस? नहीं, ऐसा हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है. देन इट्स लाइक इट्स जस्ट एन आर्गुमेंट. एमनेस्टी दी गई थी, एमनेस्टी दी गई थी. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इस्तेमाल नहीं किया. असल में ताजिर डरे हैं. दैट्स अ बिगर क्वेश्चन कि फेयर है जी सर. नहीं, मैं आपने का सवाल ये था कि आपने कहा कि अब इसके ऊपर कोई कंप्लेंट आई कि बाद में किसी ने एफडीआर ने उसको अवेल करने के बाद अवेल किया, लोगों ने एमनेस्टी को अवेल किया. अवेल करने के बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया. ऐसा कोई हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई. ये गवर्नमेंट जो है ये एमनेस्टी बोल रही है तो एमनेस्टी दे भी रही है. तो इसका मतलब कि इट्स ओनली अ फेयर फैक्टर. अब ये इतने बड़े ताजिर हैं, आप छोटे ताजिरों को रिप्रेजेंट करते हैं. जब इनको नहीं पकड़ा गया तो आपको क्यों पकड़ेंगे? माय क्वेश्चन इज. मैं ये समझता हूँ कि देखें, जिस तरह अभी दुबे साहब ने बात की कि तमाम इंडस्ट्रीज को जो है वो कर्जे शुरू कर दिए हैं और बैंकों ने और तमाम चीजों को दिया है. मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को, ट्रेडर को भी जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के मकसद के फंड दें, इनको बिला सूद कोई कर्जे दे दें. अगर बिला सूद के कर्जे देते 3-4% का जो सिस्टम आता है उसके ऊपर सब्सिडी देके इसको इस तरह चालू कर दें ताकि छोटे ताजिर की भी जो है कमर सीधी हो जाए. तो हमारी बाहर बात तो बहुत होती है लेकिन काम नहीं हो पाता. बट शेख साहब, दैट्स द फाइनेंसिंग क्वेश्चन. मैं तो स्टिक कर रहा हूँ उसी पॉइंट पे कि जब इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपके सामने ही बैठे हुए काटी के सरबराह, और ये आपसे कह रहे हैं कि हमने जब एमनेस्टी अवेल की और अरबों रुपए डिक्लेयर किए तो हमें सवाल नहीं पूछा गया. आप जब आपके ताजिर जब लाखों रुपए डिक्लेयर करेंगे तो आप क्यों डरते हैं कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे और एफबीआर पीछे पड़ेगा? जब आपकी एक एमनेस्टी से आपने फायदा नहीं उठाया तो गवर्नमेंट आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि हम दोबारा एमनेस्टी क्यों दें? बिकॉज आईएमएफ भी दूसरी जानब आपको वो भी आपके स्क्रू कसने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप बार बार सुनी देंगे एमनेस्टी. एफएटीएफ का इशू आ जाएगा. लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर अभी छोटे ताजिरों के लिए अगर ये पॉलिसी निकालते हैं 1% वाली, दोबारा एक दफा ये 1% वाली अगर ये पॉलिसी दे देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास जितनी दौलत है आप 1% टैक्स दे के उसको डिक्लेयर कर लें तो आपकी वो दौलत कंसिडर होगी, डॉक्यूमेंटेड है. बिल्कुल. और पहले कितना था? 1% भी दिया गया. 5 साल में 2 एमनेस्टी स्कीम आई है, 2 आई है. स्कीम की बात कर रहा हूँ जिसमें मकसद है कि 1% का पॉलिसी आई थी, आपको याद होगा. तो उसके अंदर मैं समझता हूँ. फिर ये जो सेकंड जो पॉलिसी है तो उसका तो तरीकेकार ही बड़ा डिफरेंट था. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी. उस टाइम शपर साहब मौजूद थे, इस्लामाबाद में हमारे कई इजलास हुए. हमने उनको कहा जो पॉलिसी आपने दी कि इसके अगेंस्ट पेमेंट होनी चाहिए, इतना सिस्टम अमाउंट जमा होना चाहिए, वो आप अमाउंट दिखाएं बैंक के अंदर तो उसके बाद आपको वो एमनेस्टी स्कीम होगी. तो पिछली एमनेस्टी स्कीम ये था कि 1% आप अपना अगर वाइट करना चाहते हैं तो 1% आप दे दीजिए. अब मेरा सवाल ये कि पिछली बार जब एमनेस्टी आई थी तो आपके ताजिरों की कितने परसेंटेज ताजिर की ऐसी थी जिन्होंने 1% को अवेल किया था? आपके पास कोई नंबर है? खाली है कोई 0.05% हमें दीजिए. 0.05%. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? तो अगर हम देख रहे हैं कि इसका मतलब खौफ ज्यादा है ना. देखिए मैं आपको बताऊं, छोटे ताजिर को खौफ ज्यादा है. ये क्या गारंटी है कि हम दोबारा करेंगे? छोटा ताजिर ये कहता है जो मैं समझ गया आपकी बात, इनडायरेक्ट टैक्स हम पे बहुत लगते हैं. आप ठीक कह रहे हैं. नाउ दिस इज अ डिफरेंट आर्गुमेंट. लेकिन अब क्या ऐसा है कि आप ये समझते हैं कि अब दोबारा 1% दिया जाए तो अवेल करेंगे? बिकॉज फिर वो ये आगे बढ़ाएंगे. 70 साल में जो काम नहीं हो सका, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस पूरी दुनिया के अंदर हमारे पाकिस्तान को दिखाया है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक अहमियत नजर आ रही है. और तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है इस माहौल के अंदर ये सारे काम हो सकते हैं अगर एफबीआर अपना किरदार थोड़ा सा दुरुस्त कर ले और ये पॉलिसी 1% वाली दोबारा दे देते इस साल एमनेस्टी स्कीम, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो जाएगा. तो माय क्वेश्चन इज कि किबला तो गवर्नमेंट का दुरुस्त है ना, किबला तो ताजिरों का दुरुस्त होना चाहिए. एक और इसमें इशू है. आपने मैं पहले इनसे पहले प्लीज आप देखिए, अगर गवर्नमेंट करना चाहे गवर्नमेंट कर सकती है, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो एक एमनेस्टी, जैसे मिसाल के तौर पर एक दफा फाइनली अगर एमनेस्टी निकालते हैं उसके बाद फिर अब तो डेटा इतना ज्यादा कंप्यूटराइज्ड है, आपके पास एनआईसी नंबर से आपके पास सारी चीजें वेरिफिकेशन हो सकती हैं, सारी चीजें डेटा आ सकता है. तो उसके बाद फिर एक रूल बना दिया जाए कि इसके बाद अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया तो वो एनआईसी नंबर से ऑटोमेटिकली एनआईसी नंबर विल बी और टैक्स नंबर, और उसके थ्रू टैक्सेशन हो जाएगी. तो मेरे ख्याल डॉक्यूमेंटेशन में लेके आया जा सकता है. इट्स नाउ कि अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अप्रोच भी लेनी पड़ेगी. तो माय क्वेश्चन इज अगेन मैं साहब आपकी तरफ आपका पॉइंट मतलब ये है कि सिर्फ एप्रीहेंशन की बात नहीं है कि छोटा ताजिर डरता है, सिर्फ डरने की बात नहीं है. एक और रीजन ये है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो अफोर्ड कर सकती है. उनके पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, टैक्स के स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, वो एक्सटर्नल ऑडिटर भी होते हैं, इंटरनल ऑडिटर भी हैं, पूरा डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का. छोटा ताजिर वो सब मैनेज नहीं कर सकता. ये एक अलग रीजन है. सिर्फ अप्रीहेंशन है कि डरते नहीं, वो ये चीजें जानते ही नहीं है. पहले तो उनको एजुकेट करना होगा कि सिस्टम कैसे बनाया जाए, किस तरह फाइल किया जाए, और वो इतना सिंपल होना चाहिए कि वो एक दुकानदार कितनी बड़ी भी दुकान हो वो अपना कोई प्रॉपर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं बना सकता, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं होगा.
اس کے لیے सिंपलीफाई करना होगा। तो सिर्फ रेट की बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन की भी जरूरत है। दूसरा, हम जब बात कर रहे हैं ना, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की हम बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं। स्मगलिंग को रोक लिया, एमएनएसटी स्कीम दिया, जितनी एग्जाम्पशन दे रहे हैं ना, एमएनएसटी स्कीम दे रहे हैं, यहाँ जुबैर साहब बैठे हैं, मैं आई डोंट नो कि ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इसे। जितनी आप एग्जाम्पशन देंगे ना, जितनी भी एग्जाम्पशन देंगे, चाहे रिटेलर्स को दें, ट्रेडर्स को दें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दें, आपका जो डेफिसिट है स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वो 8 to 9% ऑफ जीडीपी हो गया, हाईएस्ट हो गया है। जितना डेफिसिट होगा उसके लिए टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, और टैक्सेस लगेंगे किस पे? टैक्सेस इंडस्ट्री पे ही लगेंगे। इंडस्ट्री को तो सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए किसी भी इस तरह की एग्जाम्पशन को। अल्टीमेटली इंडस्ट्री पे टैक्स आएंगे और कोई पे नहीं करे, कोई पे नहीं करे। बहुत ही की पॉइंट हाईलाइट किया। अब नजीर, मैं आपको कुछ स्लाइड्स भी दिखाऊंगा। अभी मैं पहले तुफैल साहब से एक फीडबैक ले लूं कि देखिए, ये कह रहे हैं कि दोबारा दें मुझे एग्जाम्पशन और मैं अवेल करूंगा, और पहली बार जब दी थी तो अवेल नहीं की थी, तो अब दोबारा की तो गारंटी नहीं है कि दोबारा आएगी नहीं आएगी, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक मसले मसाइल हैं। अगर दोबारा आ भी गई तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट आपका जिंदगी भर का तजुर्बा है, कि कितने लोग अवेल करेंगे। अगर इन्होंने कहा कि सख्ती करेंगे तो सब रोडों पे निकल आते हैं, और वो फिर वो एक पॉलिटिकल डिबेट में चेंज हो जाता है, फिर 2-3 पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाते हैं, तो वो पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक डिबेट शुरू हो जाती है कि हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो इसको सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पशन को सपोर्ट करेंगे तो उसका जो बोझ है वो इंडस्ट्रीज पे ही पड़ेगा, जो भी कुछ आप देंगे। लेकिन मसला ये है कि इस जो छोटे ताजिर हैं, इन्हें किस तरह से सिस्टम में लाया जाए। मैं तो तकरीबन 10 साल से एफपीआर में इस इशू के ऊपर हर साल बजट पे जाता हूँ, एक्सरसाइज होती है, छोटे ताजिर भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, दरमियाने भी आते हैं, लेकिन आखिर में रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। रिजल्ट कुछ नहीं। जैसे शेख साहब ने कहा कि हमने 1% पे एग्री किया था आज से 3 साल पहले, सब कुछ हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर से बातें हुई कि बहुत बड़े पूरे पाकिस्तान के जो ताजिरों के लीडर थे वो सब आए, सबने एग्री किया कि हाँ जी हम 1% देंगे टैक्स। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो 1% के ऊपर भी जो है ना, रिटर्न बहुत कम आई, चंद हजार आई होगी, जबकि कह रहे हैं 45 लाख इनके मेंबर हैं छोटे ताजिर, 45 लाख में से चंद हजार आना तो बड़ा मायूस कुन बात है। लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई रास्ता तो निकालना हो, इन्हें किस तरह से टैक्स नेट में, टैक्स सिस्टम में लाया जाए। अब वो चाहे मैं चाहूंगा कि हमें डॉक्टर साहब भी बताएं कि अगर मेरी सोच ठीक नहीं है तो डॉक्टर साहब बताएं कि इनको इस तरह से लाया जाए। लेकिन ये जरूर बात है कि मैंने 3-4 एमएनएसटीज में देखा है कि जितनी भी हुकूमत ने इनकी बात मान के एग्री किया, पॉलिसी बनाई, लेकिन उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं। बिल्कुल नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। मैं डॉक्टर साहब के सामने कुछ स्टैट्स भी शो कराना चाहूंगा कि एक्चुअली जो आप टैक्स को वो करते हैं, आप टैक्स अवेट करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है। अब नतीजा आप देख रहे हैं कि 100% के करीब आपका जो वो है डेट सर्विसिंग है वो ग्रेजुअली इंच अप होती चली जा रही है आपके जीडीपी का परसेंटेज के तौर पे। और आपको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर 1 साल के अंदर अशिया खुदोनोश सर्विस मिला के अगर आप प्रोड्यूस करते हैं 100 रुपए की, और आपका आउटस्टैंडिंग डेट इतना बढ़ा हुआ है, फॉरेन डेट बढ़ा हुआ है 112 अरब डॉलर के लगभग, और लोकल डेट बहुत बढ़ा हुआ है, तो आपको तो बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे कि आप कहां से वो डेट को रीपे करेंगे। और प्लस उसके बाद अगर आपको मेजर लेने पड़े, पैसे छापने पड़े और इन्फ्लेशन के थ्रू आवाम से पैसा निकालना पड़े, फिर भी ताजिरों का एक इख्तलाफ होता है कि इन्फ्लेशन आ गई, अब हम क्या करें, हम कीमतें बढ़ा देंगे, फिर वो प्राइस रेगुलेशन का एक अलग इशू निकल जाता है। अगर दूसरी स्लाइड भी दिखाएं मुझे, तो अगेन वो देखिए बड़ा पोर्शन, अगेन एक इशू हमेशा ये रहा है कि एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन ये डेट सर्विसिंग के अंदर हमारा निकल रहा है, और वो ग्रेजुअली ग्रो होता चला जा रहा है। अगर आप करंट एक्सपेंडिचर ही इतना हो रहा है और करंट एक्सपेंडिचर के अंदर सारा डेट को पे करने में ही निकल रहा है, और वो डेट को रीफाइनेंस करने के लिए आप टैक्स नहीं रेज कर पा रहे और लोगों को सिस्टम में नहीं ला पा रहे, तो इट्स अ बिग स्ट्रक्चरल फ्लॉ। हाउ टू टैकल दैट, बिकॉज ये आप ही बताएंगे एक्चुअली, सलीम साहब तो क्या बताएंगे, तो पे कर रहे हैं। आप बताइए कि आप किस तरीके से आएंगे, क्योंकि ये सब मिलके आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अगर टैक्स में लाना है तो ये जो रेटरिक है कि अब 1% कर दें हम आएंगे, तो ये तो कह रहे हैं कि 5 साल से हो रहा है, ये रेटरिक का कोई नतीजा निकला नहीं है, तो अब क्या गारंटी है कि अब 1% कर दे तो आप आएंगे। देखिए उस दौर में और आज में थोड़ा फर्क है ना। इस वक्त जैसे भी इन्होंने कहा कि भी एनटीएन के हवाले से आप ये देख लें कि जब एनआईसी हमने नादरा ने हमारा क्लोज करना शुरू कर दिया तो ऑलरेडी हम उसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है। तो छोटे से छोटा ताजिर है जो आपका काम करने वाला शख्स है,
उसे नादरा के अंदर आना पड़ रहा है, और वो कोई भी चीज अगर किसी मार्केट से किसी कंपनी से वो आइटम लेता है तो उसका NIC नंबर ऑलरेडी जा रहा है। तो अब वो टैक्स नहीं दे पाते हैं, वो अपना काट पीट के अपना आगे पीछे कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि छोटा ताजिर अगर गवर्नमेंट थोड़ी से कोई रिलीफ देते ना, बिल्कुल तो छोटे ताजिरों को, देखिए ये एक हकीकत है जो मैंने आपको कहा ना 40-45 उस पर आप 200 हिल गए, तो बिल्कुल जो हकीकत है ये कड़वा सच है। बिल्कुल इतना मकसद है कि ट्रेड में लोग बैठे हुए, अगर आप सर्वे कराएंगे तो तमाम चीजें निकलेंगी। तो फिर मैं कल अगर आपको कहूंगा जी 4 लाख है 3 लाख है, पता चला 3 से 4 लाख खाली कराची में निकल आते हैं। नहीं 3 से 4 लाख तो हमें पता है ना, 15 किलोमीटर के रेडियस में निकल। तो देखिए जो चीज हकाई के उसको तो नहीं छुपा सकते ना। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए कि छोटा ताजिर, जिसमें देखिए हमारे साथ जो है फ्रूट वाला भी है, सब्जी वाला भी है, और फर्नीचर में भी है, गारमेंट्स में भी है, शूज में भी है, ज्वेलरी में भी है, इलेक्ट्रॉनिक में भी है, मोबाइल सेक्टर में भी है, तो ये ऑटो मोटरसाइकिल में भी है। तो ये तमाम चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्तलिफ मार्केट मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी एसोसिएशन के हवाले से सिलसिले को आगे चला रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी दे दे कि जिससे छोटा ताजिर जो है। कैसी पॉलिसी, मैं ये पूछ रहा हूँ कैसी पॉलिसी? सब चीजें तो आपसे अग्री करके 1% की टैक्स भी आपको दी एमनेस्टी, आपने अवेल नहीं की, अब कैसी पॉलिसी? वो दौर अब तो गुजर गया, तो आने वाले दौर दोबारा वही पॉलिसी मैं ये चाह रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि दोबारा वही पॉलिसी, कोई बयान है कि दोबारा एक बार वो पॉलिसी देते हैं? तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की तरफ से कि इंशाल्लाह, और फिर FDR जो है हमें कोऑर्डिनेशन करे, हमारे साथ बैठे, और हम डोर टू डोर जो कराची को या पूरे पाकिस्तान की जो मार्केट है जो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग उन मार्केटों के अंदर लेके जाएं और वो तमाम दुकानों को डेटा क्लोड करवा के थे ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज सलीम साहब का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक था कि फिर आप कैरेट एंड स्टिक की तरफ मूव करें। व्हाट इज योर कमेंट्स अबाउट द ग्रोथ आउटलुक ऑफ द इकोनॉमी? वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, आप अपना प्लीज फीडबैक दीजिए। देखिए मैं समझता हूँ कि अभी जो ग्लोबल एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसके अंदर 2021 का फर्स्ट क्वार्टर तो स्लो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का जो सब फोकस है वो हेल्थ के ऊपर हो गया है, और सब्जेक्ट टू द वैक्सीन की कितनी इफेक्टिव होती है और कितनी ज्यादा रैपिडली इसकी अवेलेबिलिटी होती है, तो इंटरनेशनल मार्केट इसके ऊपर पूरी डिपेंड करेगी। एंड सो इज गोइंग टू बी द केस विद पाकिस्तान, कि पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलता है। यहाँ पे लोकली गवर्नमेंट ने हमारी कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से और मुख्तलिफ जो हमारे टैक्स रिफंड वगैरह के हवाले से, ऑल्दो अभी DLTL के फंड्स के अंदर अभी इशूज ऑलरेडी बाकी हैं, बहुत सारे इशूज बाकी हैं, लेकिन अगर ये मसाइल भी हल हो जाते हैं तो लोकल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पर्टिकुलरली और उसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज को। लेकिन मेरे ख्याल अभी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जुबैर साहब जी, व्हाट इज योर फीडबैक राइट नाउ, कि क्या कंक्लूजन आप देखते हैं यहाँ से, योर फाइनल वर्ड्स, कि क्या चीजें इम्प्रूव मजीद होने की गुंजाइश है? देखिए मैं जहाँ तक इंडस्ट्रियल सेक्टर का ताल्लुक है ना, इसमें मैं काफ़ी बेहतरी देख रहा हूँ कि सन 2021 में काफ़ी बेहतरी आएगी। खासतौर पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ये बेहतर होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो उसकी बहुत सारी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो चलती हैं, और इसके अलावा लोगों के लिए रोजगार भी बहुत पैदा होगा। तो ये ईयर जो है कोविड जो है उसका पीक जो पाकिस्तान से मैं समझता हूँ गुजर चुका है, पाकिस्तान से गुजर चुका है, और पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क था कि हमने जो है जब दुनिया में सब मुल्कों ने, उसमें USA भी शामिल है, ब्राजील भी शामिल, मैक्सिको भी है, इंडिया भी, UK, इटली, फ्रांस, पाकिस्तान में जो है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में रही। उसमें कुछ हुकूमत की कोशिश भी थी, बाकी अल्लाह की मेहरबानी भी थी कि हमारी चीज़ें मामलात कंट्रोल में रहे। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा अमवात हुई और डेली आज भी 500 लोग मर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की तरफ से कि जो भी सूरत हाल है प्लस जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से ये साल जो है इकोनॉमी में बेहतरी का साल होगा, कंसोलिडेशन का साल होगा और रोजगार का साल होगा। ठीक है, अब डॉक्टर साहब आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा। एक तो ये बड़ा इशू वहीं पे रुका हुआ है, ही एग्रीज टू द फैक्ट कि एक बार दोबारा हमें अगर एमनेस्टी दी जाए तो हम बेहतर तौर पे, मेरा ख्याल एमनेस्टी वर्क नहीं करेगी, एमनेस्टी का तर्जुबा बहुत फेल हो चुका है। एमनेस्टी नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने होंगे और सिंप्लीफाई बनाना होगा। ये लोग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म फिल नहीं कर सकते, पान शॉप वाले या बार्बर शॉप से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म फिल करेगा, उनके लिए सिंप्लीफिकेशन चाहिए। दूसरा आउटलुक के बारे में देखें, जो इंटरनेशनल अदारे हैं ना, जो 5 बड़े जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक वगैरह, जो 5 इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट आल्सो इसमें इंक्लूड मैं करूं, तो उसमें पाकिस्तान के जो लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है कि दुनिया के अक्सर इकोनॉमीज जो हैं, बड़ी भी और मिडिल क्लास इकोनॉमी भी, उनमें नेगेटिव ग्रोथ ही है 2021 के लिए भी। पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतने हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इस साल नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत खुशकुन नहीं है कि हम 5%, 7% ग्रोथ पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। नेगेटिव नहीं होगी, वो एक्सपेक्टेड नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेगेटिव नहीं होगी। पाकिस्तान 2-3 उन कंट्रीज में आता है, विच मैं समझता हूँ ये इस वक्त यही एक बेहतरी का इंडिकेटर समझना चाहिए। अदरवाइज जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ है
वो 7% है, वो हमें चाहिए, वो हम अभी अचीव नहीं कर पा रहे। एम्प्लॉयमेंट का जो आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो और भी हमें, हाँ, लेकिन यस, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए 7% चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए तो पॉलिसीज हमें दोबारा से उनको रिविजिट करना होगा। ठीक है सर, आपका फाइनल टेक, बिकॉज थोड़ी सी सिंप्लिसिटी, आपका आर्गूमेंट यहाँ तक बहुत वैलिड है कि सिंप्लिसिटी लाना बहुत जरूरी है, लोगों को समझें, मुख्तलिफ जबानों में समझाएं कि इस तरीके से फाइल किया जाए, लेकिन अगेन फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे प्रेशर दिया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होने चाहिए। व्हाट इज योर फाइनल टेक? रईस साहब ने कहा कि भी छोटा ताजिर, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि वो डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह आएगा। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन में आता भी है तो वो फाइलर के लिए उसका सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इसमें क्लासेस कर दी जाए ताकि वो जो फिक्स टैक्स देने वाले लोग हैं उनको फिक्स टैक्स में कर दिया जाए, बिल्कुल मतलब जीरो स्मॉल जिसके अंदर आ जाते हैं, जो मसले के छोटी पतारे लगाने वाले, छोटी दुकानें लेके बैठे हुए, उन्हें फिक्स टैक्स में ला दिया जाए। उसके अलावा जो मतलब 3-4 कैटेगरीज बना दें, उस कैटेगरीज के मुताबिक जो है ना वो टैक्स कुछ फिक्स कर दें, और बाकी जिनकी अगर पॉलिसी अच्छी है और वो टैक्स पैड के अंदर चल रहे हैं और उनके कंप्यूटराइज सिस्टम काम कर रहे हैं शॉप पे, उन्होंने अपना डेटा बनाया हुआ है, तो अपने हिसाब से टैक्स अदा कर दें। ठीक है, आई थिंक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ से अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव होना होगा, टैक्स फाइलर्स को बढ़ना होगा, और ये 45 लाख का जो नंबर है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट नंबर टू डाइजेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, कि यहाँ 45 लाख अगर ताजिर मौजूद हैं और उनमें से 1% भी टैक्स फाइल नहीं करते तो ये इकोनॉमी चलेगी कैसे? जब आपके डेट जो है वो जीडीपी का 100% से ऊपर निकल गया है, तो आप जब तक टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, लोग सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे? ऑन दैट नोट शेख साहब, शेख हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का आपका, तो जुबैर तुफैल साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, महर साहब इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, सलीमुज़्ज़मान साहब इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। नाज़रीन, आपको ये जरूर देखना होगा यहाँ पे कि मईशत ग्रेजुअली रिकवर कर रही है। ये साल 2021 का जिस तरह महर साहब ने भी आपको बताया कि पॉजिटिव ग्रोथ होगी, कुछ एग्रेसिव रिसर्च एनालिस्ट ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 1.5 to 2% ये जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी इस फाइनेंशियल ईयर पे आ सकती है, जो कि हाफ ईयर के नंबर्स आए हैं उनको देखते हुए। दूसरी जानिब जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। अगर स्ट्रक्चरल इश्यूज खासतौर पे टैक्सेशन सिस्टम के नहीं रिजॉल्व होते, और जो इन्होंने ताजिरों ने, जो छोटे ताजिरों ने दोबारा मुतालबा किया है कि दोबारा एमनेस्टी दें, आई डोंट नो उसकी क्या लीगैलिटी होगी इफ दैट इज ब्रॉट इनटू द पिक्चर, बट अगर दी जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ाई जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऐसे लिए जाएं कि ये फिर टैक्सेशन नेट में आए और इकोनॉमी में ग्रोथ का पार्ट प्ले करें। इसके साथ ही इस प्रोग्राम को खत्म हो जाता है। अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। याद रखें कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। मोहम्मद हनीफ है। इससे पहले मैं रेंट कार में जॉब करता था और कोविड-19 के दरमियान में जॉबलेस हो गया था, और अब कामयाब जवान प्रोग्राम में अप्लाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बाइज्जत रोजगार कमा रहा हूँ। मेरा नाम उसामा तारिक बासी है। मैं इस्लामाबाद G11 का रिहायशी हूँ। पहले इस्लामाबाद G11 में मेरी शॉप थी, वो मेरी दुकान बंद हो गई, तो मैंने
گورنمنٹ میں اپلائی کیا دکان کے لیے. مجھے اسلام آباد F11 میں گورنمنٹ نے دکان دی اور میں اس دکان پہ بہت خوش ہوں. السلام علیکم، میرا نام شاہد اقبال ہے اور میرا تعلق فیصل آباد کے نوائی گاؤں سے ہے. میرا سب سے بڑا پلان تھا کہ میں اپنا بزنس سافٹ ویئر ہوسٹ کے طور پہ رن کر سکوں. اب اس میں سب سے پہلے میرے لیے پیسے کا چیلنج تھا. اس کے لیے مجھے اپرچونٹی ملی کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت. میں نے آن لائن اپلائی کیا. اپلائی کرنے کے بعد میں نے اپنے سارے پروسیجر کیے. اس کے بعد نیشنل بینک آف پاکستان نے مجھے لون پرووائڈ کیا. اس کے بعد میں نے اپنا سارا پلان ایگزیکیوٹ کیا اور آج الحمدللہ میں اپنا سیٹ اپ چلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. جموں اور کشمیر کے لیے لانچ کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ. 12 لاکھ خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس ملے گی. 350 ہسپتال ہوں گے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے سارے پاکستان میں کہ وہ جا کے اپنے ہیلتھ کارڈ سے کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکیں. فیصلہ کیا ہے کہ سب مکمل طور پہ ہر پختونخوا کے شہری کو ہیلتھ کارڈ ملے گا. پنجاب میں 60 لاکھ خاندانوں کو پنجاب گورنمنٹ اب تک دے چکی ہے ہیلتھ کارڈ اور ان کی بھی کوشش ہے کہ 2021 کے آخر تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. آزاد کشمیر کا میں اس لیے خوش ہوں. دوسری طرف کشمیر میں لوگوں کو پتہ چلے گا جو آج کل بڑی مشکلوں میں ہیں، جن کے اوپر ایک فیشسٹ ظالم حکومت ہے مسلمانوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے، ان کو ایک پیغام جائے گا کہ دیکھیں ہم اپنے لوگوں کو کیسے رکھتے ہیں. جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا.
नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।